सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए एपिसोड के साथ। और आज हैं हम हमारी गुड़िया सगुन राठी, डॉटर ऑफ मिस्टर संदीप कुमार, विलेज शांपला बेगमपुर। एंड जो सगुन राठी है, उन्होंने जिला सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज तिरुपति को टॉप किया है अपनी हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एग्जाम में। और इसी के साथ जो इन्होंने परसेंटेज गेन किया है, सी हैव गोट 93% मार्क्स इन देयर हाई स्कूल एग्जामिनेशन। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द मीडियम वाज इंग्लिश। So she is the English medium topper in जिला सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज तिरुपति। तो हम जो है सगुन राठी को और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा कि हम बच्चे को मिठाई खिलाकर शुरुआत करते हैं, तो इसी के साथ तो सबसे पहले नित्यम टीम और नित्यम क्लासेस के सभी मेंबर की तरफ से सगुन राठी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बेटा सगुन, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Thank you, sir. A very obeisance known to all. First of all, I would like to pay thanks to all my teachers and my parents who gives me support. So that's why I'm sitting in the front of you. And I am Shagun Rathore. I have passed my 10th class in Jila Singh Public Inter College, and I belong to Sapla Begumpur. Now coming to my family, there are 10 members in my family including me. My father is a farmer and my mother is a housewife. And my aim is to become an IAS officer, and I really want to give support. I really want to give pleasure to my parents and my teachers who appreciate me to gain 93% in my high school examination. That's all about me. Okay beta, thank you very much. So Sagun Rathi have got 93% marks in English medium section affiliated to UP board in जिला सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज तिरुपति। तो अब हम जानना चाहेंगे सगुन राठी के जो अंकल जी हैं वो हमारे साथ हैं, और हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने इतनी बेहतरीन सफलता गेन की है, तो इसके बाद जो है वो परिवार में जो माहौल है या पेरेंट्स का अपने बच्चे के प्रति क्या सोच है, किस तरीके से इस तरह को देखते हैं। तो हम जो हैं हमारे साथ हैं सुक्रम पाल राठी, जो सगुन राठी के अंकल जी हैं। तो प्लीज 2 शब्द इसके बारे में कहें। सभी को मेरा नमस्कार जी। बस मेरा तो कहना ये है, मैं क्लास तीसरी क्लास में से एक बात सिखाई थी कि जो घोड़े के फलीपर होते हैं जो उसके अंगों पे लगे रहे हैं सामने, उससे वह बात तीसरी क्लास में आज भी इसके भी याद है, वो हमारे भी याद है। तो इससे कहा सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना, आपने साइड में कौन नाच रहा, कौन कूद रहा, किसके साथ क्या हो रहा, किसके साथ क्या नहीं हो रहा, वो आज तक इसके याद है। उसी का बेनिफिट इसने आया हमारे सामने करके दिखाया। इसके लिए परिवार में बहुत ज्यादा खुशी है, गांव में बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की कि हमारे शामला बेगमपुर गांव से जिला सिंह तिरुपति इंटर कॉलेज में लड़की ने पूरा टॉप किया स्कूल को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार सुक्रम पाल जी। तो बेटा सगुन राठी, I want to know that what do you feel after getting this kind of great achievement in your life after getting the 93% marks in 10th standard. So please tell us about your pleasure, about your appreciable things, and about your teachers, about your principal sir, about your college environment. So please tell us about this kind of all the incident was happen in around to you, to our viewers. Yes, sir. First of all, I again want to pay thanks to my parents and my teachers who make me so able. So that's why I'm sitting in the front of you. And when I pursued my result, when I saw my result, I called to my principal sir who gave me my result,
and he was very happy after getting my result, because this was first time in Jila Singh Public Inter College that someone got 93% marks in high school examination. So I am very happy now, and my family members including me and my villagers was very happy after getting the result. And I also told to my principal sir that it is possible because of my staff members, parents and you, because no, apart from teaching they also give us some encourageable things, encouraging and motivated speech every day. So that's why most of the students were encouraged from this, and I really want to pay thanks to my all staff members and my principal sir, including my parents, and also my friends also encourage me to get this percentage in my high school examination. Thank you, sir. Okay, beta. Thank you very much. So I want to tell you about the principal, sir. Mr. Vishwas Pamwar belongs to Raniala Dayalpur, is the principal of Jila Singh Public Inter College, Tirupati. He is a very appreciable person. He is fully dedicated, fully total hard work goes to the benefit of students. So beta Sagun Rathi, now my next question is English medium, and what is the main problem in front of the students which are studying in Hindi medium section and which are studying in just a moment in English medium section, the different kind of schools like CBSE, ICSE and UP board also. So what kind of problem you have faced in your previous time, you have faced in your in previous classes like 7th, 8th, 9th and after that 10th. So do you want to share some kind of problems which can be faced by the students in that important time? So please tell us. Yes, sir. Thank you, sir. When I joined the school, firstly, I pursued my studies from MTS Public School, which is in Sarsawa. I took a 7th class from there, and after that, I have took admission in Jila Singh Public Inter College, which is in Tirupati. This is a UP board school, and which I left the school, MTS Public, this is a CBSE board school. So this is also an English medium. So that's why my thinking is that I have to choose the English medium school, and I also want to pursue the education from this school, because this is first UP board English medium which I ever seen this. So I am become very happy after taking admission. And if I talk about my principal sir, he is a very sincere person, Yeah. because he is motivated me in every phase of my life. Because if I talk about the assembly, so he is always encourage the students who is taking part in any competition, in any sports and any education. So I really want to pay thanks to my principal sir Vishwas Kumar. So I really want to pay thanks to him. और मैं आपको मतलब अगर विश्वास सर के बारे में कुछ बताएं तो हमेशा वो एक फ्रेंडली बिहेवियर रहा है उनका, हमेशा स्टूडेंट के साथ। एक ऐसा नहीं रहा है कि टीचर और स्टूडेंट का रहा है हमेशा। और अगर हम स्टाफ मेंबर्स की बात करें, मतलब एक फ्रेंडली अटैचमेंट रहा है, जिससे ना तो कभी बच्चों ने कभी कोई हिचकिचाए हैं, कोई अपना डाउट पूछना है, किसी को कुछ भी करना है तो कभी कोई बच्चा हिचकिचाता नहीं था, क्योंकि इतना फ्रेंडली बिहेवियर सभी स्टाफ मेंबर्स का स्टूडेंट के साथ रहा है कि उन्हें कभी भी कोई डाउट पूछने में अपनी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो इस वजह से मेरा मतलब मैं इस स्कूल में लगभग 3 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा इतना अटैचमेंट बन गया है स्टाफ मेंबर्स के साथ भी, स्टूडेंट के साथ भी, कि मतलब अगर मैं चाहूंगी अभी भी मैं अपने आप पूरा श्रेय जो अपने मतलब 93% जैसे मैंने गेन किया उसका पूरा श्रेय अपने स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और टीचर्स को ही देना चाहूंगी, प्रिंसिपल सर को, फ्रेंड्स को। एंड दैट्स ऑल आई वांट। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि हमारी गुड़िया सगुन राठी ने हमें बताया कि इस सफलता के पीछे जो हमारे स्कूल के या कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, इतने ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं
और उनका एक एक पल प्रतिपल वो अपने बच्चों के बारे में, अपने कॉलेज के उत्थान के बारे में, बच्चों की नई नई स्ट्रेटजी के बारे में, और उनको किस तरीके से बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, समय समय पर जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उनके बारे में, बच्चों को मोटिवेट करने के बारे में प्रतिपल। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे कि 24/7/365 जो पूरा समय जो रहता है उनका, तो वो बच्चों के उत्थान के लिए ही रहता है। तो बेटा शगुन लाठी, थैंक यू वेरी मच फॉर sharing to this information to our viewers. So next question is, like as I have seen that you have got Hindi 91%, English 97, Maths 97, Science 92, SST 93, and Drawing 88. So you have got 97% marks in two imported subjects like as English. So please tell me about that. What was the strategy, and what do you think about to gain to this kind of marks? Means that 97% marks is very high, and so very tough work behind it to get this percentage in your English. And the second is you have got 97% marks in mathematics. So it's very also tough according to me that you have got the 97 marks out of 100 in math. So please tell our viewers that what was the suitable strategy which you have used to get this kind of percentage in your 10th examination. So if I got the 97 marks in English and in maths, so I want to dedicate these marks to my teacher, Mr. Sachin Rathi, and my maths teacher, Mr. Joni Diman, and my Mr. Sonu Kumar. And I really want to pay thanks because मिस्टर सचिन सर ने हमें इतना मतलब ना शुरुआत से लेके चले जैसे कि हम पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, मतलब 10th से शुरू किया उन्होंने, 10th से भी पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है ना उनसे शुरू किया, और जाकर हमें मतलब 10th से भी आगे तक मतलब 11th का सिलेबस लगभग हमने कवर किया है, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा उन्होंने कि हमें सिर्फ एग्जाम के जरिए से पढ़ना है, एग्जाम के जरिए से पढ़ना है, बल्कि उन्होंने सोचा कि हमें आगे तक पढ़ना है, जिससे अगर बाय चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा मतलब बाहर से आ जाता है तो उससे हम अटेम्प्ट करने में ना हिचकिचाए। और मुझे लगता है कि उन्हीं के प्रयास अनुसार मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। बाकी तो मैंने मतलब अपना 100% दे के आई थी इंग्लिश में, बाकी जैसे वो ऐसे में 1 नंबर कट करते हैं, एप्लीकेशन में करते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज 3 marks हैज बीन कट। सो if I talk that I also got 99 marks in English, but because of examiner checking I got 97 marks, and I really want to pay thanks to Sachin sir who teaches English, because I never teach English like this from any teacher. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो बेटा हम जानना चाहते हैं जैसे कि आपने इनके पीछे की रणनीति के बारे में बताया कि जो आपके टीचर्स रहे हैं मिस्टर सोनू कुमार इन मैथ्स, मिस्टर सचिन कुमार इन इंग्लिश, तो ओवरऑल अगर आप परसेंटेज को देखते हैं, जो जिला सिंह का एक इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं या जो टीचिंग स्टाफ है, तो उनके जो प्रयास हैं या उनका जो एक हार्ड वर्क है बच्चों के प्रति, जैसे कि वो 10th में ले लिया जाए या 12th में ले लिया जाए, या एक पूरा अगर हम पूरे सिस्टम को अगर देखें, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं, किस तरीके से योगदान रहा है, या किस तरीके से उन चीजों को आप उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, या किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, या किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को इस बारे में भी बताएं। Sir, it is difficult to run Hindi medium and English medium both in only one school. Yeah. So I really want to appreciate my staff members and teachers who teach us in both this in both the streams, Hindi and English medium both, and not only the senior classes but also junior classes. हमें मतलब हमने देखने को मिला कई स्कूलों में क्या होता है सिर्फ सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स को ही ध्यान दिया जाता है, बट हमने अपने स्कूल में देखा है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम मकान कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल में ये है कि हमने देखा कि
छोटे बच्चों को इतना, मतलब हमने भी शायद इतना नहीं सीखा होगा जितना मैंने इस स्कूल में आके देखा कि छोटे बच्चों पर इतना ध्यान दिया जाता है, इतना ध्यान दिया जाता है कि हमने कई बार देखा जो प्री नर्सरी का स्टूडेंट है, नर्सरी का स्टूडेंट है, उसे 30 तक टेबल आते हैं, 20 तक आते हैं। आई रियली शॉक्ड अबाउट दिस, and this credit is goes to Mr. Devi Singh sir, who teach the junior students very well, and according to the school environment it is very good to me, and according to my personal view and I really want to pay thanks to those who run this school very well, and all the students who was teaching in Hindi medium. Hindi medium, they also want to try to speak in English with others, and the environment of getting the English in just teaching a Hindi medium section, so it is difficult and it is possible in our school. Okay, okay, beta. Thank you. Gunati told us that it's a very difficult to collaborate to Hindi and English medium. The both medium can't run in a single place. But it has done due to the principal sir, has done due to our hard worker staff members, because they can mention each and every students, they can mention each and every section, and they can mention the best environment meanwhile of them. So मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिला सिंह का जो स्टाफ है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कॉलेज को या कॉलेज की जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया हुआ है। जैसे कि हमारी गुड़िया सगुन राठी ने बताया कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कोलैबोरेट करना, लेकिन ये अगर पॉसिबल है तो ये केवल जिला सिंह में ही पॉसिबल है। और अगर जिला सिंह में पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, जो हमारे मैनेजर सर हैं मिस्टर संदीप राठी जी, और जो हमारे जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर ईश्वर चंद, तो उनके जो एक सामूहिक जो प्रयास है तो वो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट के रूप में चारों तरफ जो बच्चों को फायदा मिल रहा है इस चीज का कि मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी फ्रॉम द सेक्शन इन इंग्लिश मीडियम। तो बेटा सगुन, अब अगला क्वेश्चन जो आपसे ये है कि आप फ्यूचर में जो अभी आपकी जो प्लानिंग है कि वो किस तरीके से देखते हैं, पीसीएम को चूज करना चाहते हैं, पीसीबी को चूज करना चाहते हैं, तो किस लाइन में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं? इतनी बेहतरीन सफलता से आपने जो है हाई स्कूल को पास किया है और वो भी इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें इस बारे में कि किस तरफ जाना आपके लिए अच्छा है और किस तरफ जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ज्यादातर जो है उनको किस इंटरेस्ट के आधार पर आगे की रणनीति को तय करना चाहिए। देखिए सर, अगर हम बात की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हमने 12th तक हिंदी मीडियम लिया है तो नो वरी, हमें आगे जाके दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एक ही हो जाते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि बाद में कि हमें इंग्लिश में ज्यादातर करना पड़ता है कि एक अलग इम्पैक्ट डालता है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम इंग्लिश में अगर आप चाहे यूपी बोर्ड से कर रहे हैं तो यू मे ज्वाइन, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सो आई चूज इंग्लिश मीडियम because of this purpose, because I want to do the UPSC, and I thought that English is suitable for this exam, maybe Hindi also, but I just choose that I prefer for me English language, and till 10th I choose the mathematics, and after that I took keen interest in mathematics, but I just want to try that I have to take the humanities in my 11th class. It is the choice of the student which one he or she want to take, and I really want to say that कि after the 12th class it's our choice that what do you want to choose, maybe any graduation degree, it's our choice, and my field is to went in UPSC and to become the civil service servant, and because of my hobby, because I really want to help the people by closing them, and my civil service, why do I want to choose a civil service? Because I
took a keen interest by helping the people by and I took my hobby. If I thought about my aim, then I am happy that my hobby is just related to my aim, and I want to be an IS officer. Because of my this aim, I choose my hobby. सो अगर मैं अपनी हॉबी की बात करूं, मुझे लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता है और उनके साथ में रह करके उनकी मदद करना। और जैसे कि हम बात करें, अगर सिविल सर्वेंट की बात करें तो उसके पास ये सभी अपॉर्चुनिटीज, ये सभी पावर होती हैं। सो आई चूज माई एम टू बिकम एन IS ऑफिसर। And if I talk about the optional subject, most of the students were very confused in it. So optional subject is that which word you want to take and you have to took the interest in it. And ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स आसान है, इन सब्जेक्ट को ज्यादातर ले लेते हैं, उन्हें लेना है जिन्हें आप मतलब कि जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये 500 नंबर का होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हम इसे ऐसे नहीं हल्के में नहीं ले सकते कि हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूं जो मैंने 10th में की है, तो मैं इसमें मेरा एक वो रहा है टारगेट कि मैं ऐसा ना करूं कि मतलब कितने घंटे पढ़ना है, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 6 पढ़ना है। आई मेक माई शॉर्ट टारगेट्स एंड आई मेक बाय मेकिंग माई शॉर्ट टारगेट्स इन द नाइट. When I tick them, I become very happy because I pursued my short goals, and after joining the short goals, I also pursued my long term goal. So I only want to say that कि अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें मतलब कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए, रोज कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं बाद में नहीं कर रहे हैं, मतलब रोज करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रिविजन रखना है साथ में अपना। और घंटे मैटर नहीं करते, आपके गोल्स मैटर करते हैं जो आप अपने हर दिन लगाते हैं। तो इसी के लिए हम यही प्रेफर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बेटा सगुन राठी, हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारा आशीर्वाद भी है पूरी नित्यम टीम क्लासेस की तरफ से, हमारे जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो कॉलेज है उसकी तरफ से। तो आप बिल्कुल यूपीएससी को फाइट करें और भगवान करे कि आप यूपीएससी को क्लियर करें। और जो मानवता की सेवा करने का आपने प्रण लिया है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है जैसे कि आपने बताया है, तो उसमें ईश्वर आपको जरूर कामयाब करें। तो इसी के साथ जो हमारे साथ मिस्टर सचिन सर हैं, और जो हमारी गुड़िया ने बताया है कि इंग्लिश में सी हैव गॉट 97% मार्क्स, सो ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ मिस्टर सचिन सर एंड ऑल द टीम मेंबर्स। तो हमारे साथ मिस्टर सचिन सर हैं, तो प्लीज कम हियर और हमारी बच्ची को जो है आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आप भी कहें। Thank you, sir, for calling me, and I want to bless our dear students and dear daughter. I want to thanks Mr. Uday sir, so because he has given me this opportunity at this stage, and I pray to God that all the dreams of Sagun Rathi will happen good and will come true. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू सचिन सर। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ के बारे में बताइए कि जैसे कि जो स्ट्रेटजी रही है आपको इंग्लिश पढ़ाने की, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं लगातार अपने हार्ड वर्क किया है, तो इस तरीके से हमने देखा है जो रिजल्ट्स आए हैं और भी बच्चों के, तो पूरे कॉलेज में 4 बच्चे जो हैं वो 90 से ऊपर हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक रणनीति काम कर रही होगी इसके पीछे, या रणनीति ने काम किया होगा। तो उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि हमारे बच्चों को, जो आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो 10th को फाइट करेंगे 2025 में, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी सर, हमारी स्ट्रेटजी एक ही थी कि हमने जीरो से लेकर शुरू करना है, जीरो से बिल्कुल, और जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है, लगभग अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर में भी लास्ट। उससे क्या होता है, हमारे पास रिवीजन करने का अधिक से अधिक टाइम मिलता है, और जो हमारे अनसोल्ड पेपर्स बाजार से मिलते हैं वो हमने ज्यादा से ज्यादा क्लास में कराने की कोशिश की है। कम से कम 30-40 अनसोल्ड पेपर हमने कराए होंगे ग्रामर पोर्शन के, और जो फर्स्ट पेपर है उसको भी हमारे धर्मवीर सर अच्छे से कराते थे, वो भी उन्होंने भी जो प्रैक्टिस सेट थे वो ही कराए थे। और इसी वजह से आज हम सगुन राठी ने हमारे आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से और अपनी मेहनत से 97
मार्क्स गेन किए हैं। जी सर। तो थैंक यू वेरी मच सचिन जी। तो इसी के लिए हम जो है अपनी बिटिया सगुन राठी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको जो हमें जो अपना एक प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी पूरी नित्यम टीम की तरफ से और पूरे कॉलेज पूरे स्टाफ की तरफ से पूरे मैनेजमेंट की तरफ से हमारी गुड़िया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करने की इजाजत दें। धन्यवाद, नमस्कार।